اساتذہ کرام اور طلباء عزیز، اللہ کا بہت بڑا فضل اور اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ رب کریم ہم جیسے ناکاروں سے قرآن کریم کی معمولی سی خدمت لے رہا ہے، یہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے۔ ہمارے بڑے علماء اور ہمارے معزز علماء جو ہمارے اس چھوٹے سے ادارے کے اندر تشریف لاتے رہتے ہیں اور یہاں کے نظم و انتظام کے بارے میں ہم سے پوچھتے رہتے ہیں، معلومات کرتے رہتے ہیں، پھر مستقل انہیں اپنی فائل کی شکل میں جو ہمارا ایک مرتب نظام ہے، اس مرتب نظام کو ان کے سامنے ہمیں پیش کرنا ہوتا ہے، جس کے سمجھانے اور بتانے میں تقریباً گھنٹوں ہمارا خرچ ہوتا ہے۔ میں بحیثیت خادم جامعہ دارالفلاح ایک مدرس بھی ہوں، ایک یہاں کا ناظم بھی ہوں، خادم بھی ہوں، تو مجھے بڑی دقت اور پریشانی محسوس ہوتی رہی اس بات کی کہ میں درجے میں سے اٹھ کر الگ بیٹھ کر اپنا پورا مرتب نظام، تمام فائلیں نکال کر اور وہ مہمانوں کے سامنے پیش کروں اور پھر سب کو الگ الگ کر کے نظام سمجھاؤں کہ 24 گھنٹے کا ہمارا جامعہ کا مدرسے کا نظام یہ ہے۔ ایک مستقل مسئلہ میرے ذہن میں گردش کرتا رہا، اور پھر یہ ہوا کہ کچھ ہمارے احباب نے، متعلقین نے، متوسلین نے مجھے کہا کہ یہ جو فائل آپ نے تیار کی ہے، جس کی فوٹو کاپی کرا کے اہل مدارس علماء لوگ آپ کے یہاں سے لے جاتے ہیں، اگر آپ اسے کسی کتابچے کی شکل میں دے دیں، بنا دیں، تو اس سے کافی لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ پھر میں نے یقیناً وقت کے اعتبار سے اور اساتذیوں کے اصرار کے بعد اس کو ایک کتاب کی شکل دینی شروع کی، اور خیال یہ تھا کہ میں اس کو بہت معمولی سی اور چھوٹی سی کتاب تیار کی، لیکن جب میں نے اس پر کام کرنا شروع کیا اور اپنے 20 سال کے تجربات میں نے اس میں لکھنے شروع کیے، تو وہ لکھتے وہ اتنی ضخیم اور اتنی موٹی کتاب ہو گئی، 320 صفحات پر مشتمل اس کا پہلا حصہ تیار ہو گیا۔ اس کا مسودہ فی الوقت تیار ہے اور الحمدللہ وہ بہت جلدی منظر عام پر آنے والی ہے۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ہمارے کچھ اساتذہ نے، کچھ متعلقین اور محبین نے ہمیں کہا کہ آپ اس کتاب کے اندر جو آپ نے لکھا ہے، جو آپ کا تجربہ ہے، جو آپ کا نظام ہے، اس نظام کو آپ ایک ویڈیو کی شکل میں بھی لاتے رہیں۔ کس طریقے سے آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں، کس طریقے سے آپ بچوں کو کور کرتے ہیں، کس طریقے سے مدرسے کا نظام دیکھتے ہیں، 24 گھنٹے آپ کے مدرسے کا کس طرح سے نظام چل رہا ہے۔ میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے نظام کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے بہت شرم محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ نظام نمونہ تو کوئی بھی چیز وہ ہوتی ہے جو ایک امتیازی درجہ رکھتا ہو اور ایک اپنی حیثیت رکھتا ہو، لیکن جب ہمارے اکابرین نے اور ہمارے علماء نے اور ہمارے معزز آنے والے مہمانوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی، تو ہمارے اندر یہ ہمت پیدا ہوئی اور یہ جرأت پیدا ہوئی۔ اس جرأت کے پیش نظر ہم نے ایک تدریب المعلمین کے نام سے یہ گروپ جس میں آپ سب منسلک ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ہم نے یہ شروع کیا ہے، اور اس میں الحمدللہ ہم اپنے تجربات مثلاً کہ داخلے کے کیا قوانین ہوتے ہیں اور اس کے کیا شرائط ہوتے ہیں، داخلے فیس کی شکل کیا ہوتی ہے، وظائف کیسے طلباء کو دیے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے تعلیمی نظام گھر گھر کا کیسے چلایا جاتا ہے، تربیتی نظام کیسے چلایا جاتا ہے، تعطیلات کا نظام کیا رہتا ہے، تبلیغی نظام کیا رہتا ہے، بچوں کی صفائی ستھرائی کا اور لباس پوشاک کا کیا نظام رہتا ہے، انجمن طلباء کی محفل قرات وغیرہ کا کیا نظام رہتا ہے، بچے اچھے پڑھنے والے مشاق کیسے تیار ہوتے ہیں، تمام مدرسے کے اندر ایک بچہ ایک جیسا
लहजे का कैसे तैयार हो सकता है, इतनी उम्दगी के साथ ठहर ठहर कर कुरान पढ़ने वाला बच्चा कैसे तैयार हो सकता है। तो जो अपनी नाफिसी मेहनत और छोटा सा अपना तजर्बा है वो हम इस तदरीबुल मुअल्लिमीन ग्रुप में आपके सामने पेश करते रहेंगे। आज सबसे पहले हम इसकी इब्तिदा कर रहे हैं और इब्तिदा करने में हम आपको ये बता रहे हैं कि जो किताब हमने रहनुमाए मकातिब व मदारिस के उन्वान से लिखी है, हम उस किताब को सामने रखकर और उस किताब में चूँकि अपना तजर्बा है, उस तजर्बे को सामने रखकर आपको आहिस्ता आहिस्ता अपना निज़ाम आपके सामने लाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। आज से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये निज़ाम बाज़ाब्ता शुरू हो रहा है। रोज़ाना 1, 2 या 3 वीडियो इस ग्रुप में डाली जाती रहेगी और कोशिश हमारी ये रहेगी कि इंशाअल्लाह हम आपको तसल्ली बख्श जवाब दें। अगर आपको अपने किसी भी तजर्बे में कोई भी कमज़ोरी महसूस होती है तो आप लिख कर के भी इस ग्रुप पे डाल सकते हैं, ताकि हम बाद में रोज़ाना आने वाले सवालों का या किसी भी एक दिन मुस्तकिल तमाम सवालों के जवाब देकर आपको तस्लीम कर सकें। बहरहाल अपनी बात पहुंचाने का ये भी एक रास्ता है, ये भी एक ज़रिया है। इसलिए हमने ये ग्रुप तैयार करके और इसमें सिर्फ उन लोगों को जोड़ने की हमने कोशिश की है और दरख्वास्त की है कि सिर्फ वही लोग जो कुरान करीम को अच्छा पढ़ने और पढ़ाने का ज़ौक़ रखते हैं, जो कुरान करीम से उनसियत और ताल्लुक़ और मोहब्बत रखते हैं, जो कुरान करीम के पढ़ने पढ़ाने वालों को मोहब्बत की नज़र से देखते हैं, उनकी सराहना करते हैं, उनकी हिम्मत अफजाई और हौसला अफजाई करते हैं, ऐसे लोग ही इस ग्रुप के अंदर अपने आप को वाबस्ता करें। और जो लोग इस्तिफादा करने वाले हैं वो इस्तिफादा करें। और मैं ये नहीं कहता कमज़ोरियाँ होती हैं, खामियाँ होती हैं, तनकीद करने वाले तनकीद भी करते हैं। हमें अगर कोई तनकीदी कलिमात भी हमारे सामने आएगी, कोई बात आएगी, तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसको भी हम अपनी इस्लाह का ज़रिया समझें। बहरहाल आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपने मदरसे का मुख्तसर सा पहले तारुफ करा रहा हूँ कि हमारा ये मदरसा जिसका नाम जामिया अरबिया दारुल फलाह है, ये कस्बा बुढ़ाना में वाक़ई है। दीनी तालीम और तरबियत की अहमियत और उम्मत मुस्लिमा की ज़रूरत के पेश नज़र इस इदारे का क़याम 23 मुहर्रम सन 1439 मुताबिक 21 सितंबर सन 2017 बरोज़ दोशंबा को दारुल फलाह बुढ़ाने का क़याम अमल में आया। इससे पहले यानी अभी तकरीबन हमें 3 या 4 साल का अर्सा यहाँ काम करते हुआ 4-5 साल का वक्फा गुजरा है। इससे पहले करीब में ही कस्बा बुढ़ाने के करीब में तकरीबन 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है टोटा के नाम से। वहाँ हमारा तकरीबन 17 साल हमने अपनी ज़िंदगी को वहाँ गुजारा है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी एक इदारा और एक मकतब हमारा अभी वहाँ जारी है। तो वहाँ हमने मुस्तकिल तरीके से 17 साल तक काम किया। बहरहाल कुछ ज़िंदगी के साथ में इस तरह के मसाइल और मराहिल दरपेश हुए कि जिसकी वजह से हमें उस इदारे को छोड़ना पड़ा। यहाँ हमें उसके न बताने की ज़रूरत है और बहरहाल वहाँ उस गांव से आप बिल्कुल मुतारफ़ भी होंगे। और तकरीबन मेरा चूँकि गांव कसेरवा है, लेकिन मुझे लोग उसी गांव के नाम से, चूँकि मैंने वहाँ रहकर एक लंबे टाइम तक काम किया है, इसलिए लोग मुझे जो कहते हैं वो टोटे के नाम से ही मंसूब करते हैं। मेरा असल गांव कसेरवा है जो शाहपुर और बुढ़ाने के दरमियान में वाक़ है। इस मदरसे का संग बुनियाद अमीरुल औलिया वल अत्किया हज़रत मौलाना इफ्तिखार हुसैन साहब कांदलवी के दस्ते मुबारक से रखा गया था। जामिया का नाम बंदा नाचीज़ ने अकाबिरीन के मशवरे से खुद ही दारुल फलाह तजवीज़ किया था, क्योंकि गांव टोडा के अंदर जो हमारा इदारा चला करता था उसका नाम भी दारुल फलाह ही था। और वहीं रहते हुए हमने इस मदरसे का संग बुनियाद डलवा दिया था और गोया उस वक्त में ये मकतब की शक्ल में और उसकी शाख की शक्ल में हुआ करता था। लेकिन जब हालात इस तरह के सामने आए कि हमें अपने आप को वहाँ से जुदा करना पड़ा और फिर हम यहाँ आकर के जब बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ 200 बच्चे बैरूनी इस मदरसे के अंदर ज़ेर तालीम रहते हैं।
ये मदरसा कस्बा बुढ़ाना मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर रोड हिंदन नदी के पास में वाक़ई है। ग्रीन हॉस्पिटल से बिल्कुल मुत्तसिल एक रास्ता नीचे की तरफ उतरता है और वहाँ से चंद कदमों के बाद ये मदरसा उसी रास्ते पर वाक़ई है। जामिया के अगराज़ व मक़ासिद यानी दारुल फलाह बुढ़ाना के क़याम का मकसद ये है कि यहाँ ऐसे दीन के दाई तैयार किए जाए जो इल्मी अमली हथियार से लैस। यहाँ पर अगर बात शोबा जात की जाए, फिर वक्त यहाँ जो शोबे हैं वो 4, 5, 6 शोबे हैं, जिनमें दीनियात, हिफ्ज़, तजवीद, आलमियत का अरबी दोम तक और तकरीर और तहरीर वगैरह, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ है। असली तालीम को अगर देखा जाए तो उर्दू, अंग्रेज़ी, हिसाब, साइंस वगैरह की भी ज़रूरी तालीम यहाँ दी जा रही है। इस वक्त पहले, अब से पहले यानी जिस वक्त मैं आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ, अब से पहले सालों में ये रहा है कि हाफिज होने तक हम बच्चे को दर्जा 5 तक पढ़ाते हैं, लेकिन वक्त के हालात को पेश नज़र रखते हुए हमने फौरी तौर से इसके अंदर ये तब्दीली की है कि दर्जा हिफ्ज़ की तकमील के साथ साथ तालिब इल्म को दर्जा 8वीं तक इंशाअल्लाह हम करा रहे हैं। उसके बाद फारसी, अरबी अव्वल, अरबी दोम, इन 3 सालों में 9वीं और 10वीं का मुकम्मल इंतजाम कराया गया है। यानी बच्चा यहाँ से एक तरह से 10वीं करके फारिग होगा और अरबी दोम तक की यहाँ फिलवक्त तालीम है, तो अरबी दोम तक की तालीम से फारिग हो जाएगा। उसके बाद बच्चा अपनी सवाबीत पर या अपने असातिज़ा के राय और मशवरे और अपने सरपरस्ता के मशवरे से जिस इदारे का भी इंतखाब करना चाहेगा कर लेगा। इसी तरीके से दीगर शोबों में अगर देखा जाए, मसलन दावत व तबलीग, हिफ्ज़ से फारिग होने वाले जो तलबा होते हैं उनको कंप्यूटर वगैरह की भी यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है और दूसरे कई हुनर और सिखाए जाते हैं। मदरसे के अंदर एक दवाखाना है जिसमें तलबा की सहूलत के लिए हर बीमारी की दवाई का इंतज़ाम किया जाता है ताकि तलबा को हल्की फुल्की बीमारी पर घर न जाना पड़े। ये निज़ाम डॉक्टर साहब की निगरानी में ही चलाया जाता है। एक कुतुब खाना है मदरसे के अंदर, इस कुतुब खाने में तमाम उलूम व फ़नून की किताबों को जमा किया गया है जिससे अहले मदारिस, अहले मदरसा व तलबा अपने इल्म की प्यास बुझाते हैं। मदरसे के अंदर एक मेहमान खाना है, दारुल फलाह में एक मेहमान खाना है जिसका खर्च मखसूस मामलीन अपनी जेब से चलाते हैं। उसमें ज़कात व सदक़ात का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। दावत व तबलीग से हफ्तेवार तलबा की एक तरतीब बना करके तैयार की गई थी जो फिल वक्त मौकूफ़ है और आगे जैसे इंशाअल्लाह अज़ीज़ हालात होंगे उसी एतबार से फिर 24 घंटे की जमात हफ्तेवारी मदरसे से निकाली जाएगी। ये भी आप याद रखिए कि इस मदरसे का कोई सफ़ीर भी नहीं है और ना ही यहाँ मुदर्रिसीन से ये खिदमत ली जाती है। ये मुअल्लिमीन हज़रात यहाँ तशरीफ़ फरमा है या जो हमारे मुअल्लिमीन यहाँ से पढ़ाकर जा चुके हैं उनसे भी आप इस बात की तायीद और तस्दीक कर सकते हैं कि कोई यहाँ का सफ़ीर नहीं है और न तलबा न मुदर्रिसीन से खिदमत ली जाती है, बल्कि साहिब गुंजाइश लोगों के बच्चों से तमाम फ़ीस वसूल की जाती है और उनकी फ़ीस की बुनियाद पर इस इदारे को चलाया जाता है। बाकी जो यतीम तलबा होते हैं उनके लिए जो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी से जो लोग यहाँ इस तरह की रकम देकर चले जाते हैं, उस रकम के ज़रिए से उन यतीम बच्चों को हम रख लेते हैं और वो पैसा उनके ऊपर खर्च कर देते हैं। ये इस वक्त में मैंने अपने मदरसे का मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने रखा और इंशाअल्लाह कल से हमारा जो उन्वान रहेगा वो रहेगा दाखिला, कि मदरसे के अंदर तलबा को किस तरीके से दाखिल किया जाए, दाखिल करने के लिए सरपरस्तों के लिए क्या शराइत हैं या इसी तरीके से तलबा के लिए क्या शराइत हैं और किन शराइत के साथ और किन ज़वाबित के साथ यहाँ बच्चे को दाखिल किया जाता है और फिर किस तरीके से उनको यहाँ रखा जाता है। इंशाअल्लाह उसकी पूरी तफसील कल आपके सामने वीडियो की शक्ल में आ जाएगी। अल्लाह ताला हम सब को